am Dr. Rakhi Singh, Principal of Royal International School. Our school is situated in Dombivli East. Royal International School has been established in the year 2010 with the slogan, Your Vision, Our Inspiration, and with the vision, Creating Leaders of Tomorrow. Royal International School is running by the Dombivli Yuvak Education Trust. The founder of this trust is Mr. Rajnikant Shah, who is also president of our school. As you know that we are going through a pandemic situation, and so today I am going to take you a visit of our school for virtual inspection. So let's start. I'll show you school main gate. This is our school main gate, Royal International School, affiliated to CBSE board. And this is our 4-story of school building, which is surrounded by the Pakka wall. The height of this wall is more than 5 feet. And due to the corona, we have taken some preventive measurements. So this is the banner of COVID-19. And here we have written, maintain social distancing, compulsory use of face mask, washing hands oftenly, avoid touching surface, frequent sanitization. And this is our sanitizer. So we have to clean our hand first. Then he will take our temperature with thermal gun and he will sanitize our school floor. So this is routine preventive measurements which we are taking for everyone. And this is our school playground. The area of this playground is 2424 and we take 40 minutes of our sports lecture every day. We have divided school sports period into 2 parts, indoor games and outdoor games. Indoor games we are taking chess and carom. Outdoor games we are taking football, volleyball, खो-खो, कबड्डी, etc. 2019-20 में हमारे 47 हम लोगों ने 47 स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 26 DSO यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंपटीशंस थे उसमें पार्टिसिपेट किया और हमने पूरे 26 कंपटीशंस में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक लिया। इसके बाद में CBSE जोनल की तरफ से हम लोगों ने 3 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और 2 स्पोर्ट्स में हमने फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस लिया और जो फर्स्ट प्लेस थी जोनल में वो हमारी नेशनल लेवल तक गई। तो इसके लिए मैं CBSE का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल का ग्रीनिश एरिया, प्लांटेशन एरिया। एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए, तो ये हमारे स्कूल का ग्राउंड जहाँ पर हम लोगों ने प्लांटेशन किए हुए हैं। और प्लांट्स हमारे अर्थ के लिए कितने ज़रूरी हैं ये हम बच्चों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्कूल का असेंबली हॉल। Our school timing is 7 AM to 1 PM and at 6:55 we give the long bell to assemble our students over there and we conduct our assembly from 7 AM to 7:15 and class wise we conduct our assembly. We conduct our assembly in 3 languages और हर वीक एक लैंग्वेज को दिया जाता है। इसमें प्रेयर, प्लेज, नेशनल एंथम और न्यूज़ रीडिंग, जीके के क्वेश्चंस ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज के ऊपर हमारे बच्चे स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं असेंबली के लिए।
असेंबली में वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम लोग मास पीटी का अरेंजमेंट करते हैं और अपने पीपीटी के थ्रू हम उनको बहुत सारी जानकारी जीके लेवल पर और बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सन्स के बारे में भी बताते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने एडमिन ऑफिस की तरफ। This is our school's admin office. And this is our school's front office. Our staff nicely deal with us parents. This is our school's reception area. And we have fire alarm control panel over here. All the 4 floors alarm has been controlled by this panel. This is fire alarm. This is fire pipe. And we have each type of the setup on every of the floor. सीबीएसई के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग हर वेडनेसडे को एक मॉक ड्रिल करते हैं फायर से रिलेटेड और इसमें एक लॉन्ग बेल प्रेस किया जाता है जिसमें सभी बच्चों को अपने बिलोंगिंग्स उसी जगह छोड़कर बहुत तेज़ी के साथ असेंबली हॉल में असेंबल होना पड़ता है। और ये जो मॉक जो रहता है ट्रेनिंग ये हमारे स्टाफ के लिए भी रहता है। तो इस मॉक ड्रिल में हमारा स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके थ्रू हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी उन्हें अवेयर करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बाउंड्री वॉल, पक्का वॉल चारों तरफ से स्कूल को कवर कर रहा है। This is our canteen area, and in this canteen area we cook hygienic food और हमारा जो खाना तैयार किया जाता है वो हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनके थ्रू वीकली तैयार किया जाता है हमारा फूड चार्ट मेनू। और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से खाना तैयार किया जाता है। यहाँ पर सभी लोगों को ग्लव्स पहनना, कैप लगाना और यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी होता है। खाने का टेस्टिंग किया जाता है, बिना टेस्टिंग के खाना नहीं दिया जाता है। हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो खाने को टेस्ट करते हैं और अप्रूव होने के बाद ही बच्चों को दिया जाता है। फूड मेनू में हम लोगों ने लंच का भी अरेंजमेंट किया है और स्नैक्स का भी अरेंजमेंट किया है। स्वच्छता पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उनका कहना है कि जहाँ पर स्वच्छता होगी वहाँ पर निरोगी काया होगी। और कुछ ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि स्वच्छता पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने अपने स्कूल को चारों तरफ से स्वच्छ रखा है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को यानी कि अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ एंड क्लीन रखिए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं स्टाफ कैंटीन एरिया की तरफ।
is our staff, school staff canteen area. और पक्का वॉल हमारा स्कूल को कवर कर रहा है। साथ में आप देख सकते हैं फायर का पाइप भी जा रहा है। मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में जो ज़मीन है उसकी बहुत कीमत है और इसलिए ज़मीन का हर एक पार्ट जो है बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अब आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर के स्टाफ रूम की तरफ। This is our school's staff room. We having 60 teachers in this school, and every teachers got the individual lockers. We having 2 PCs over here, 1 printer. अपनी टीचर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर दिया है, वो इस पर काम करते हैं। लैपटॉप भी दिया हुआ है। एक फ़ोन लाइन रहती है, एक्सटेंशन फ़ोन लाइन है, ताकि जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट किया जा सके। स्कूल का सॉफ्ट बोर्ड है जिस पे नोटिसेस एंड सर्कुलर्स लगे होते हैं। स्टाफ रूम में 2 कैमरे हैं और एक एसी है। और अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमारे प्राइमरी सेक्शन यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड के लिए रॉयल इंटरनेशनल स्कूल ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। इसमें एज पर हमारे प्रेसिडेंट सर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स 4 व्हीलर्स मंगा के दिए हैं बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 व्हीलर्स हैं और बाइक्स हैं। तो 3 कैटेगरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। हमारा कार है, बाइक्स हैं और बाईसाइकिल्स हैं। ये सर ने इसलिए लाकर दिया है ताकि बच्चे इसको चलाकर एक तो जो ट्रैफिक के नियम हैं उसका भी पालन करें और दूसरा जो फन है यानी कि इनको कैसे अगर रोड पर लेके जाना है तो कैसे ड्राइव करना है, और बच्चे इसके साथ में फन भी करते हैं, मोटर स्किल्स भी उनका यूज़ होता है और उनका ब्रेन भी शार्प होता है। तो इसके लिए भी हम उनको एक लेक्चर देते हैं जिसमें हमारे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चे हैं, वो आकर इनको चलाते हैं और साथ में लर्निंग भी करते हैं, सीखते भी हैं ट्रैफिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके साथ ही मैं अब आइए आपको ले चलती हूँ हमारे क्लासरूम की तरफ, हमारे टॉयलेट्स की तरफ। स्कूल बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है। आप देख सकते हैं टाइल्स वगैरह सब अच्छे से लगे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हुए ये एक स्कैनर है जिससे कि बच्चे अपना जो आई कार्ड होता है उसको पंच करते हैं और इससे उनका अटेंडेंस उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाता है मोबाइल थ्रू। और जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो एग्ज़िट के समय भी अपना आई कार्ड पंचिंग करते हैं जिससे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनके बच्चे अब स्कूल से निकल चुके हैं। पीने के पानी के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, इसलिए हमारे स्कूल में हर एक फ्लोर के ऊपर एक वाटर कूलर है। उसके साथ में आरओ सिस्टम भी दिया हुआ है ताकि बच्चों को एकदम साफ सुथरा पानी मिले, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैलती हैं। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने हर एक फ्लोर पर आरओ सिस्टम दिया है विद वाटर कूलर। स्कूल में 130 सीसीटीवी कैमरास हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी CCTV कैमरा है और पूरे स्कूल को इन्होंने कवर किया है। हमारे स्कूल के हर एक फ्लोर पर आपको लेडी सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेगी, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 ईयर्स पहले CBSE ने ऐसे रूल निकाला है कि आपको एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड बच्चों की सुरक्षा के लिए फ्लोर पर देनी है। तो वो हमारे स्कूल ने उसका भी प्रावधान किया है। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं अपने टॉयलेट्स। हमारे हर एक फ्लोर पर अल्टरनेट टॉयलेट्स है। ये फर्स्ट फ्लोर पर जेंट्स टॉयलेट है, सेकंड फ्लोर पे लेडीज़ मिलेगा, थर्ड पर फिर जेंट्स टॉयलेट है एंड फोर्थ पर फिर लेडीज़ टॉयलेट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जेंट्स टॉयलेट। आप देख सकते हैं टॉयलेट कितना साफ सुथरा है और इसकी 4 सेक्शंस हैं। और ये यूरिनरी पॉट्स हैं, 8 पॉट्स हैं यहाँ पर। तो इतना बच्चों के लिए अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर हाथ धोने के लिए 3 टैप्स हैं, सैनिटाइजर है। ये हमारे स्कूल का एक अच्छा साफ सुथरा जेंट्स टॉयलेट है। अब आइए मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट में। आप देख सकते हैं ग्रीन मार्बल फ्लोरिंग है और कोरोना का टाइम है तो हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर भी लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी, जैसे कि मैंने कहा था, एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड, हर फ्लोर पे गार्ड, एक हमारी हाउसकीपिंग, हर फ्लोर पर ये अरेंजमेंट है। स्कूल के नोटिस बोर्ड, आप ये नोटिस बोर्ड भी दिखा सकते हैं। और आइए हम आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास दिखाती हूँ। प्राइमरी सेक्शन में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास देखेंगे। बहुत ही स्पेसियस क्लास है, 600 स्क्वायर फीट। टू ACs हैं, ह्यूज विंडोज हैं, कर्टन्स हैं। मैं आपको विंडोज भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं विंडोज हैं। बेंचेस साफ सुथरे एकदम, सॉफ्ट बोर्ड है, बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर सब लगा हुआ है, छोटे बच्चों से। स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी है यहाँ पर, स्मार्ट बोर्ड है। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का हमारा प्राइमरी सेक्शन का एक क्लास है और प्राइमरी की सारी क्लासेस ऐसे हैं। तो मैं आपको एक ही क्लास आज दिखा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मिडिल स्कूल की क्लासेस। देखिए यहाँ पर लेडीज़ टॉयलेट है। मैं आपको लेडीज़ टॉयलेट के अंदर दिखा रही हूँ।
रहा है। यहाँ पर इंडियन टॉयलेट भी है और रशियन टॉयलेट भी है। रशियन टॉयलेट इस तरह की टॉयलेट्स हैं। आदमी के लिए यहाँ पर 3 डेस्क हैं और हैंड लिक्विड सोप भी है यहाँ पर। हमारी लेडी सिक्योरिटी गार्ड। स्पेशल एजुकेटर का ये एक ऑफिस है जहाँ पर टीचर्स जो डिसलेक्सिया होते हैं, जो डिस्ग्राफिया होते हैं, डिस्कैल्कुलिया होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर गाइड किया जाता है और उनको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। हमारा स्कूल में बहुत सारे हम लोगों के एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व करवाया है। हमारे स्कूल का एक बच्चा है हर्ष ढोलस, वो इतना हाइपर एक्टिव था कि सारा स्कूल उससे परेशान था और हर एक कोई भी स्कूल उसको लेना भी नहीं चाहता था। तो हमने उस बच्चे को डेवलप किया और आज वो बच्चा जूडो कराटे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जोनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर आता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और हमने करके दिखाया है कि हम अपने जो बच्चे होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं और जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से स्कूल पूरी तत्परता के साथ में उनको बढ़ाता है, उनका विकास करता है सामान्य बच्चों के जैसा ही। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मिडिल की एक क्लास। ये हमारा 7th स्टैंडर्ड है। सेवेंथ स्टैंडर्ड में हमारे इस क्लास में सेम 600 स्क्वायर फीट का क्लासरूम है, 2 ACs हैं, सॉफ्ट बोर्ड है जिसमें कि हर एक विषय से संबंधित यहाँ पर चार्ट लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर है, हर क्लास में यहाँ पर प्रोजेक्टर है, आप देख सकते हैं, PC है, और ये स्मार्ट बोर्ड भी है। तो मिडिल स्कूल में जो क्लासेस के अरेंजमेंट होते हैं उनके सब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। NCERT का करिकुलम हम लोग फॉलो करते हैं और इस तरह से अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ लर्निंग और अपने प्राइमरी के बच्चों को फन एक्टिविटीज़ की तरह के थ्रू लर्निंग वो हम लोग सिखाते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं अपने सेकेंडरी सेक्शन की तरफ। स्कूल को जो पीरियड्स हैं वो 8 पीरियड्स होते हैं और ये 8 पीरियड्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बेल के द्वारा 40-40 मिनट्स पर डिवाइड करते हैं। हमारे स्कूल का पहला और 5th लेक्चर जो पीरियड होता है वो 45 मिनट का होता है, रेस्ट सभी पीरियड्स 40 मिनट्स के रहते हैं। हमारे स्कूल का वेलनेस ऑफिस है, यहाँ पर हमारी टीचर कुसुम प्रजापति रहती हैं और वो बच्चों को कोई भी अगर समस्या होती है उसका समाधान करती हैं, काउंसलिंग किया जाता है उनका और बच्चों के प्रॉब्लम्स को सुलझाकर और उनको अच्छी तरीके से पॉजिटिव करके आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि बहुत बार
ऐसा होता है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी के घर में प्रॉब्लम होते हैं, किसी के मम्मी पापा के रिलेशन में प्रॉब्लम होते हैं, या बहुत सारी चीज़ों से अंदर ही अंदर बच्चे जूझ रहे होते हैं। तो हमारी जो वेलनेस टीचर है वो उनके संपर्क में आती है और उनका बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करती है। तो आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ सेकेंडरी की क्लास। ये हमारी 10th की क्लास है। तो इससे पहले मैं 10th की क्लास दिखाऊं, मैं सीबीएसई बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एफिलिएशन दिया और हम लोगों ने अपना जो बच्चे थे, जो 40 स्टूडेंट्स थे, वो 40 के 40 स्टूडेंट्स पास हुए। 100% रिजल्ट हम लोगों ने दिया। हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो इसके लिए मैं सीबीएसई बोर्ड का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्रूव करने का मौका दिया कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड अच्छे से चला सकते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड अच्छे से चला सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी सेकेंडरी की क्लास में भी 2 एसी हैं, लाइट की सफिशिएंट व्यवस्था है, यहाँ पर प्रोजेक्टर है बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर, पीसी है। भाई मैं आपको लेकर चलती हूँ लाइब्रेरी की तरफ। बच्चों की जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो उसकी किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं। बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आप जितनी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे उतने ही अच्छे आपका विकास होगा और आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपनी जो लाइब्रेरी है उसका बहुत अच्छी तरीके से विकास किया है और हमारे बच्चे इसका पूरा लाभ भी उठाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लाइब्रेरी, जो कि बच्चों के अच्छे विकास, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है यहाँ इस जगह पर। हमारा लाइब्रेरी एरिया है। हमारी लाइब्रेरी में रीडिंग एरिया है, रीडिंग एरिया है, क्योंकि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है तो बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी इस लाइब्रेरी में 9449 बुक्स हैं, 21 मैगजीन्स हैं, 5 हमारे डेलीज आते हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारी लाइब्रेरी। आप इधर देख सकते हैं। क्योंकि हमारा इंस्पेक्शन, वर्चुअल इंस्पेक्शन जो है अपग्रेडेशन के लिए है, तो हम लोगों ने 11th 12th की बुक्स का भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। आप देख सकते हैं 11th की और 12th साइंस एंड कॉमर्स, 11th कॉमर्स, 11th साइंस, ये हमने अरेंजमेंट सीनियर सेकेंडरी के लिए किया है।
सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। हम लोगों ने ई-ग्रंथ सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड किया है और उसके थ्रू हम अपने स्कूल के जितने भी बुक्स के जो लेने और देने की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। सारा रिकॉर्ड ई-ग्रंथ के थ्रू रखा जाता है। बच्चों के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पर लाइब्रेरी रजिस्टर है। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, लाइब्रेरी स्टेशन रजिस्टर है यहाँ पर। ये देखिए दूसरा रजिस्टर है। तो इस तरीके से सारे रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 17-18 का भी है। लाइब्रेरी का स्टॉक रजिस्टर भी है यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरीके से ये लाइब्रेरी जो कि बच्चों के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, उसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसके हिसाब से हमें 6000 तक की ही बुक्स चाहिए होती है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा बुक्स 9449 बुक्स यहाँ पर रखे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट सर बच्चों को कितना इस तरफ प्रेरित करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। आप जितना बुक्स पढ़ेंगे उतना हम ला कर देंगे, बस आप बुक्स पढ़िए और अच्छे चरित्र का, अच्छे अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। अब आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी एक्टिविटी की तरफ। ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं और बच्चे जब थोड़ा पढ़ के थक जाते हैं तो उनको एक ऐसा लेक्चर दिया जाता है जिसमें वो थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। मल्टीपल एक्टिविटी रूम है, आप देख सकते हैं। म्यूजिक के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पियानो है, तबला है, ढोलक है, गिटार भी है और ये झूमर भी है यहाँ पर, ये भी है। स्केटिंग के लिए हमारे पास में बच्चों के लिए स्केटिंग्स हैं जो हम स्कूल से उन्हें देते हैं। डंबल्स हैं, ये बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग है डंबल, ये देखिए। तो इससे उनका जो स्टेमिना है इनको बढ़ाया जाता है। बच्चों के स्टेमिना मजबूत करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। हमारे जूडो सर जो है वो बच्चों को इस तरह की फिजिकल थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे उनका स्टेमिना बढ़ता है। इंडोर गेम्स में हमारे पास में चेस है, कैरम है। हमारे जूडो कराटे के लिए यहाँ पर बैट्स हैं, आप देख सकते हैं, गद्दे हैं यहाँ पर। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहते हैं स्कूल में क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। बच्चे क्यों बनाकर आते हैं, क्यों बनाकर जाते हैं और पूरी यूनिफॉर्म में बच्चे रहते हैं। और जिस तरीके से हम चलते चलते बात कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई के साथ, एकेडमिक के साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी दी जाती है। यानी कि जो एकेडमिक होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने, आपको भी एक्टिविटीज़ रूम भी दिखा कर आई हूँ, बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं हम लोगों ने। और इसके साथ ही हम लोग उनकी लाइफ स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं, उनके जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके ऊपर भी वर्कआउट करते हैं। वैल्यू एजुकेशन हम लोगों ने सब्जेक्ट रखा है ताकि बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके, अच्छे जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चों को मिल सके।
क्योंकि अभी हमारा ये जो वर्चुअल इंस्पेक्शन है ये अपग्रेडेशन के लिए है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपग्रेडेशन के लिए अपने सीनियर सेकेंडरी के लिए क्या अरेंजमेंट किए हैं। हम लोगों ने 11th कॉमर्स की क्लास रखी है। तो आप देख सकते हैं 11th की कॉमर्स की क्लास है। यहाँ पर 2 AC है, प्रोजेक्टर है, CCTV कैमरास आपको हर क्लास में मिलेंगे, यहाँ पर भी हैं, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर, एक PC है, तो ये हमारी 11th कॉमर्स, 11th साइंस, 11th साइंस की क्लास है। सेम फैसिलिटी के साथ में। अब क्योंकि बच्चों का, आजकल के बच्चों को जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ये इरा चल रहा है और बिना टेक्नोलॉजिकल के कुछ भी नहीं है। तो बच्चों की टेक्नोलॉजिकल विकास के लिए उनको एक बहुत अच्छा कंप्यूटर लैब दिया गया है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे हमारे बच्चे अपग्रेड हों। लेकिन उससे पहले 4th फ्लोर का हमारा स्टाफ रूम है, ये आप देख सकते हैं। स्टाफ रूम 4th फ्लोर, यहाँ पर टीचर्स के बैठने की व्यवस्था है, उनके लॉकर्स हैं, एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर दी गई है टीचर्स के लिए, AC है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ। कंप्यूटर लैब से पहले मैं आपको मैथ्स लैब दिखाती हूँ। आप देखिए मैथ्स लैब है, तो जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो मैथ्स लैब के थ्रू दिया जाता है। मैथ्स लैब से रिलेटेड रजिस्टर भी है। हमारे जो मैथ्स लैब है उसको यहाँ पे जो गट शिक्षण अधिकारी हैं वो भी चेक करके गए थे, उनका आप स्टैम्प भी यहाँ पर देख सकते हैं, और वो इसे देखकर बहुत खुश भी हुए थे। ये हमारा कंप्यूटर लैब है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के युग में। यहाँ पर हमारा 40 कंप्यूटर्स हैं, हर एक बच्चे के लिए कंप्यूटर है। और यहाँ पर जो भी अपग्रेडेशन किया गया है उसको हमारी जो यहाँ की इंचार्ज है मैडम है वो बताएंगी, तो आप थोड़ा मैडम आपको बताएंगे इस बारे में। हमारे लैब में 40 कंप्यूटर्स है, 1:1 रेशो है, तो हर एक बच्चे को एक कंप्यूटर मिलता है उनको स्टडी करने के लिए। जो हम लोगों का ऑफिस है दैट वी आर परचेज 365 वर्जन, विच इज़ अ परचेस्ड वर्जन ऑफ ऑफिस, तो बच्चों को ये बहुत यूज़फुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो अभी का लेटेस्ट है वर्जन 10, तो वो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल द सॉफ्टवेयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 to 7 स्टैंडर्ड्स एज वेल एट 8 ऑनवर्ड्स। जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से लैंग्वेजेस है लाइक पाइथन, टर्बो C++, इवन कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए जो भी सिस्को पैकेट ट्रेसर लैंग्वेजेस है वो सारे हम लोग डाउनलोड करके हम लोगों ने अपग्रेड करके रखे हैं लैब में। थैंक यू मैडम इस जानकारी के लिए। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट
विजिट की तरह। तो आपने देखा कि जो बच्चों का जिसे बोलते हैं ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो खाली एकेडमिक पार्ट ही नहीं होता, उसमें एकेडमिक के साथ साथ में इनको इस तरह की नॉलेज भी रहती है, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रहते हैं जिससे कि उनका जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। और हम लोग हमारे स्कूल में सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, हम लोग स्कूल में फ्री फूड भी प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे स्कूल का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि जिसमें हम अपनी डाइटिशियन के थ्रू उनके हेल्थ को लगने वाली हर एक चीज़, फल रहते हैं उसमें, फ्रूट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, और जो भी फूड रहता है वो डाइटिशियन के द्वारा सेट किया जाता है ताकि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। अगर वो मेंटल स्ट्रेस में होंगे, अगर उनका दिमाग थका हुआ होगा तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल बहुत ध्यान देता है। इसीलिए हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं वो बच्चों को फ्री फूड, जो भी स्नैक्स रहते हैं, जो भी लंच रहता है वो प्रोवाइड करवाते हैं, और इसके लिए बच्चों से कोई पैसा लिया नहीं जाता है। और हफ्ते में एक बार उनको अच्छे से स्वीट भी दिया जाता है ताकि बच्चे उसको भी एंजॉय कर सकें। वीक में वो एक बार खा सकते हैं उसको। ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो डेली दिए जाते हैं बच्चों को। तो आइए मैं अब आपको ले चलती हूँ अपने लैब्स की तरफ। ये हमारा फिजिक्स लैब है। अपग्रेडेशन के लिए, एफिलिएशन अपग्रेडेशन के लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत थी तो हम लोगों ने इसको तैयार किया है। हमारे जो सर हैं अनिरुद्ध सर, वो इस फिजिक्स के लैब के बारे में और इसके इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे सर। Welcome you. I will show you the experiment one by one, which is used for class 11th and class 12. So one by one, this is the Ohm's law. This apparatus is arranged in the series wise, and here there is a series. This apparatus is arranged in the parallel wise, but it is also Ohm's law. Same experiment, but there is a different type of arrangement. This is the original Ohm's law to show the difference between variation between P and I. This is a spring Gauss oscillator. This is for this experiment, and this is the pendulum. Here we have to find out the time versus the motion of the pendulum. Accordingly, we will find out the mass of this particular pendulum. This is potentiometer to find out the resistance of this galvanometer. This is read. This is a sonometer one. Here we are keeping the frequency constant. Tension constant and find out the frequency relation between frequency and length. This is the resonance meter. Here we have to find out the speed of the sound in the air. This is the meter meter bridge to find out against the resistance of the wire. Again here this is also meter bridge. Here we will find out the resistance are arranged in the different series. It is arranged in the connection is different, and also we have to find out the resistance of this galvanometer. This experiment is sonometer 2, and here Newton's law of cooling. Here we have to find out the relation between temperature and relation between temperature versus time, and we will plot a graph accordingly. This is the 11th standard 11th experiment, vernier calipers. With the vernier calipers, we have to find out the diameter of this valve, and we also have to find out the dimension of this particular valves. This is the spirometer. With the help of spirometer, we have to find out the radius of curvature. This is the Priser experiment. Here we have to find out the refraction of the light, how the light is reflected. Again, this is the glass slab experiment. Glass slab experiment, we have to find out the deviation of the light when it is passes from one medium to another medium. This is sonar system. Here we have to find out the reflection of the sound. And here in this this is the law of parallelogram. We have to represent with the law of the parallelogram.
Here this is a mass, this is a weight, this is a weighing things. We have to adjust the weight accordingly and dependent upon the pad. This experiment is for the static friction, to find out the static friction. This is also for the 11th standard 11th experiment. This is again also for finding out the static friction. So these are the experiments which we have to perform in the standard 11th and 12th. अब आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बायोलॉजी लैब की तरफ। Good morning, ma'am. As you can see, this is the biology lab. You all can see this whole lab is fully equipped with all types of apparatus, specimens, glass apparatus, models and charts. Moving forward, we can see here there are various types of microscopes, that is simple microscope, dissecting microscope and compound microscope. These microscopes are used for the morphological and anatomical study of these specimens. Now we can see we have kept all sort of models of various systems. This is reproductive system, this is nervous system, this is female reproductive system. Now this section is completely for these specimens. These specimens are used for the morphological analysis of all these species. You can see here this is fungi, this is earthworm, this is arthropoda and this is bryophyta. I would be showing you this is the basin which we use for the hand wash as well as for making any solution we use this basins. Now moving forward, this is a small section which I have just kept for the demo, in which we have kept all the glass apparatus such as test tube with the test tube holder. Now this is a beaker, conical flask, measuring cylinder, dropping bottle and the slides. These are used for the major and the minor experiments. Now moving towards, as I already told you, these all are the models which are used for the circulatory system. This is respiratory system and this is basically used for the anatomical structure of any of the organisms. Now we would move towards, now in my extreme right side here is the skeleton system. This is a human skeleton system which is used to analyze the structure of the human system. अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी केमिस्ट्री लैब की तरफ और क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए बायो लैब, फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब का महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से इन लैबों को सेटअप किया है और पूरा जो एक्सपर्टीज़ होते हैं उनके थ्रू, हमारे जो EGTs होते हैं उनकी सलाह के अनुसार और एक्सपर्टीज़ के सलाह के अनुसार हमारी जो लैब्स हैं वो एज़ पर द CPSC बायलॉज के अकॉर्डिंग तैयार की गई हैं। चाहे वो एरिया हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स क्वालिफिकेशन हो, वो सब हम लोगों ने एज़ पर द CPSC बायलॉज कंप्लीट किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना केमिस्ट्री है, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है स्टॉक रजिस्टर है। मेडिकल रूम और यहाँ पर एक नर्स भी रहते हैं, अभी शायद देख कर रहे होंगे। और ये हमारा सिक बे है, बच्चों के लिए बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनके फर्स्ट एड का सामान है। और हम लोग का जो टाई अप रहता है हर्डिकल हॉस्पिटल के साथ में,
तो अगर मेजर प्रॉब्लम होता है तो बच्चों को वहाँ भेजा जाता है विद पेरेंट्स इंफॉर्मेशन। तो आइए अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस की। प्रिंसिपल ऑफिस हमारा ऑफिस है। हमारा सॉफ्ट बोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, हमारी डायरेक्टर मैडम है मिसेस पूजा शाह। यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स डे, सेलिब्रेशंस, योगा डे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसरो में हमारे बच्चे विजिट करने के लिए गए थे, उनका हेल्थ चेकअप, बाल महोत्सव, इंडिपेंडेंस डे और आवर स्टाफ, हमारा समर कैंप, हमारे कॉम्पिटिशन्स, हमारे एनुअल डे। तो ये सारी जो हम एक्टिविटीज़ पूरे साल करते हैं उसके यहाँ पर कुछ टिक्स हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा फायर सर्टिफिकेट है। ये हमारा नेशनल बिल्डिंग सर्टिफिकेट है जो मराठी मीडियम लैंग्वेज में है, तो इसका जो ट्रांसलेट है वो नोटरी कराया गया है, आप देख सकते हैं। ये एफिडेविट है। और ये शेड्यूल 3 है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उनके साइन रहते हैं और ये इंस्पेक्शन करके इस लेटर को तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो स्कूल का वर्चुअल टूर है वो अब यहीं पर ख़त्म होता है। आशा है आपको स्कूल का वर्चुअल टूर अच्छा लगेगा और हम भी आशा करते हैं कि आप हमें अपग्रेडेशन का मौका दें और सीनियर सेकेंडरी के लिए हमें एफिलिएटेड करें ताकि हम डोंबिवली में पहला एक ऐसा स्कूल बने जो कि CBSE से 11th एंड 12th सीनियर सेकेंडरी को चला रहा होगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।